لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1250 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں اور ان میں سے سب سے کم آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ دوبارہ حدیث دوہرا دیتی ہوں، آپ کو بات عجیب لگ رہی ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں اور ان میں سے سب سے کم 70 دروازے کہہ لیجئے یا 70 حصے کہہ لیجئے، ان میں سے سب سے کم کا گناہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ جتنا انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ اب سود کا اتنا زیادہ گناہ کیوں ہے؟ میرا حال ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ شریف خاندان جو ہے اس کا عروج و زوال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان جو تھا یہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا۔ اتفاق فاؤنڈری جو ہے یہ ان کی ملکیت تھی۔ بھٹو نے اس کو جب تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا تو اس نے ان کی فیکٹری کو بھی نیشنلائز کر لیا۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کو واپس کر دی گئی۔ بعد میں پھر شریف خاندان جو تھا اس میں سے نواز شریف سب سے پہلے ضیاء الحق کی حکومت میں وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ اب دیکھیے جی، ایک فیکٹری سے اگلے چند سالوں میں 85 فیکٹریاں بن گئی۔ اور یہ کیسے بنی میں یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے، ایک آدمی بینک سے لون لے لیتا ہے، فرض کیا 1 کروڑ روپیہ بینک سے لون لے لیا اور اس پہ بینک نے سود لیا۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ اپنی فیکٹری لگا لی۔ فیکٹری لگانے کے بعد اس نے فرض کیا جی اس نے موبائل کی فیکٹری لگائی ہے۔ موبائل جو تھا اس کی قیمت 5000 روپے اس کو گھر میں پڑی، لیکن اب اس نے چونکہ بینک کا سود بھی دینا ہے، اپنے لیے بھی نفع رکھنا ہے، وہ کرے گا کیا کہ 5000 کی بجائے وہ یہ جو موبائل ہے اس کو 6000 میں بیچے گا۔ 500 تو وہ اپنا نفع رکھے گا، ظاہر ہے اس نے فیکٹری لگائی ہے، وہ اس کو تیار کروا رہا ہے اور پھر اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ایک بڑا سیٹ اپ اس نے بنایا ہے، تو 500 روپے وہ ہر موبائل میں سے اپنا نفع رکھے گا اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ لیکن ادھر سے جو اس نے بینک کا سود دینا ہے، اور بینک جب اتنے بڑے بڑے لون دیتا ہے تو تھوڑا سود نہیں لیتا، بینک کا کم از کم جو لون پہ سود ہوتا ہے وہ 27% ہوتا ہے اور اس کو مارک اپ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جو سود کی شرح ہوتی ہے یہ 35% اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، منیمم 27% سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہ جو اس نے 1 کروڑ کے اوپر 27% یا 30% اس نے جو سود دینا ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر موبائل کی میں سے 500 روپے وہ سود کے کاٹے گا اور اس موبائل کو جو کہ مارکیٹ میں 5,500 کا بک سکتا تھا 6,000 کا بیچے گا۔ اب اللہ نے کیا اس کی فیکٹری چل گئی، 10 سال کے اندر اس نے بینک کا لون اتار دیا اور ڈھیر سارا منافع بھی اسے اکٹھا ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 سال کے بعد اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کا یہ جو ہے موبائل 6,000 کا بک رہا ہے۔ اب اس نے بینک کا لون بھی اتار دیا، فیکٹری پوری اس کے قبضے میں، اور وہ جو ہر
मोबाइल पर 1,000 रुपया नफ़ा आ रहा है, वो भी उसको मिल रहा है। लेकिन इस सारे फैक्ट्री की कीमत किसने भुगती? बताएं अवाम ने, जिन्होंने इस मोबाइल को महंगा खरीदा। अगर वो फैक्ट्री से सूद पर लोन न लेता तो पूरी जो कौम थी उसको 500 रुपये फीकस ना देने पड़ते। अब आपको समझ आई है कि जब इंसान सूद पे कर्ज लेता है तो फिर होता क्या है, पूरी कौम जो है वो महंगाई का अजाब भुगतती है। आप देख लीजिए, IMF से हम कर्जा ले रहे हैं और उसके बदले हमें कौन कौन सी शराइत भुगतनी पड़ रही हैं। सबसे पहली शर्त क्या थी उनकी कि डॉलर 150 तक आएगा। आपने देखा डॉलर 150 तक आ गया, हमारा घर बैठे हमारे रुपए की कीमत जो है वो कितनी कम चली गई। अब आपको पता चला है सूद किस तरह नुकसान पहुंचाता है, और ये पूरे कौम को नुकसान पहुंचाता है। पूरी कौम में से हर फर्द ने ये मोबाइल वाले सौदे में से 500 रुपए ज्यादा दिए, और ये सब किसकी जेब में गए? फैक्ट्री के मालिक की जेब में। सूद एक का है, लाखों की है मर्गे मफाजात। लाखों लोगों को महंगाई का अजाब भुगतना पड़ा, और वो सारे का सारा नफा किसकी जेब में गया? फैक्ट्री के मालिक की जेब में। अब आपको समझ आई है। इसी तरीके के साथ शरीफ खानदान ने पहले एक फैक्ट्री से 2 की, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, यहाँ तक के 85 फैक्ट्रियां शरीफ खानदान की मलकियत में हो गई। और ये काम कानूनी था, लेकिन इसका खमियाजा किसने भुगता? पूरी कौम महंगाई के अजाब में गिरफ्तार हो गई। मैं आपको बताऊं, जब हम कर्ज नहीं लेते थे, मुझे याद है मैं तब मैट्रिक में थी, तब डॉलर जो होता था 4.25 रुपए के बराबर होता था। उस वक़्त हम दुनिया से कर्ज नहीं लेते थे। अयूब खां का दौर था, और उस दौर में हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की थी। जनूबी कोरिया का वफद हम पाकिस्तान आया था ताकि वो देखे कि पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह क्या है। लेकिन मैंने बताया उस वक़्त हम दुनिया से कर्ज नहीं लेते थे। उस वक़्त डॉलर की कीमत 4.25 रुपए थी। आज दुनिया से हम कर्ज लेते हैं, आज डॉलर की कीमत कितनी है ये आप खुद जानती हैं। और ये सारी नहुस्तें और ये सारे महंगाई के अजाब सूद की वजह से हैं। अब आपको समझ आई है। जना इंसान करता है तो उसके साथ 2 खानदान मुतासिर होते हैं, जबकि सूद के साथ पूरी कौम महंगाई के अजाब में मुतासिर होती है। अमीर को तो पता नहीं चलता, लेकिन गरीब आदमी, उसका खाना भी ख़त्म हो जाता है, उसका पीना भी ख़त्म हो जाता है, उसकी बीमारी का इलाज भी नहीं हो पाता, और पता नहीं कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई है कि नहीं? मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सादे अल्फाज में सूद के नुकसानात समझा सकूं। तो ये जो एक फैक्ट्री से 85 फैक्ट्रियां बनी हैं, ये बैंकों से सूद पर कर्जा लेकर ही तो बनी। सूद के 70 दरवाजे हैं, और उनमें से सबसे कम का गुना अपनी माँ से ज़ना करना है। अंदाज़ा कर लीजिए, जिस गुना के जितने बुरे असरात होंगे उतना ज़्यादा उसका गुनाह होगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसे कुरान मजीद में अल्लाह और उसके रसूल से जंग कहा है। जो शख्स सूद के गुनाह का इल्म होने के बाद भी सूद लेना नहीं छोड़ता, उसे अल्लाह ताला कहते हैं फाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कर दो, ऐलान कर दो मेरी अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और सबसे बड़ा सूद आदमी का अपने भाई की आबरू के बारे में दस्तराजी करना है। अब एक सूद तो हुआ जो हमने माल में लिया, और एक सूद, और सबसे बड़ा सूद क्या है? इंसान अपने भाई की इज्जत के पीछे पड़ जाए। इज्जत के पीछे पड़ने से क्या मुराद है? उसकी गीबत करे, उसके पीठ पीछे मरे हुए आदमी का गोश्त खाए। ये सबसे बड़ा सूद है। सूद का गुनाह कितना है? सूद के 70 हिस्से हैं, और उसमें सबसे कम का गुनाह माँ से ज़ना करने के बराबर है। और सबसे बड़ा सूद क्या है कि इंसान
अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। हम सूद को तो बड़ा गुनाह समझ लेते हैं, लेकिन गीबत को तो हम गुनाह समझते ही नहीं हैं। इसीलिए हमारी ख़वातीन की जो ज़बानें इस सिलसिले में बड़ी फर चलती हैं। कोई मामला हुआ, कहीं शादी से होकर आए, बाद में तबसरे हो रहे होते हैं, किसी महफिल से आए, बाद में तबसरे हो रहे होते हैं, और ये तबसरे आमतौर पे नेगेटिव होते हैं, और यही गीबत होती है जिसको हम अपनी ज़बान की चस्के की खातिर कर रहे होते हैं। तो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल का फरमान दोबारा सुन लो। सबसे बड़ा सूद क्या है कि इंसान अपने भाई की आबरू के पीछे पड़ जाए, उसकी इज्जत बर्बाद कर दे, उसकी बेइज्जती कर दे, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी गीबत कर दे। वैसे भी गीबत करना कबीरा गुनाह है, जिसके लिए दोज़ख की वईद सुनाई गई है, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमज़ा। दोज़ख है हर ताना देने वाले के लिए और हर गीबत करने वाले के लिए। अल्लाह ताला हमें सूद लेने से भी बचाए और अल्लाह ताला हमें गीबत करने से भी बचाए। हदीस नंबर 1253 अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह ज़ुहद और यकीन के साथ हुई थी, और इस उम्मत के आखिरी लोग बखीली और आरजुओं के साथ हिलाक होंगे। इस उम्मत के पहले लोग कौन थे? सहाबा। उनकी इस्लाह कैसे हुई थी? आपको पता है, सहाबा एक बद्दू और वैशी कौम थे, जिनके अंदर बेशुमार किस्म के गुनाह आम थे। बेटियों को जिंदा गाड़ देते, जना करते और आम जना करते, कत्ल करते, और बात बात पे कत्ल हो जाता, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता। इतनी लंबी लड़ाइयाँ चलती कि लड़ाई ख़त्म होने में ही ना आती। जो मदीने के लोगों में एक लड़ाई चली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, 110 साल तक जारी रही। होता क्या था, जब एक नस्ल जवान होती तो वो अपने बड़ों का बदला लेने लग पड़ती। होता ये कि जो फरीक गालिब आता वो मगलूब फरीक के तमाम लोगों को कत्ल कर देता। अब मगलूब फरीक के जब बच्चे जवान होते, वो लड़ाई को फिर से जवान कर देते, वो अपने दुश्मन से बदला लेने पर तुल पड़ते। और इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये लड़ाइयाँ चलती रहती। 110 साल तक मैंने बताया कि लड़ाई चली। इसी तरह मक्के में भी यही हाल था, बात बात पे लड़ाई होती, बात बात पे झगड़ा होता, और वो ये झगड़ा कभी ख़त्म ना होता। मकतूल के बच्चे जब जवान होते तो वो अपना बाप का बदला लेने चल पड़ते। दूसरा पार्टी होती, उसके बच्चे जवान होते, वो अपने बड़ों का बदला लेने चल पड़ते। तो इस उम्मत के पहले लोगों की इस्लाह कैसे हुई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन्हें नेक इंसान बना दिया? उनकी इस्लाह ईमान के साथ हुई थी, अल्लाह पर यकीन के साथ हुई थी, और ज़ुहद के साथ हुई थी। ज़ुहद से क्या मुराद? उनके अंदर दुनिया का शौक़ नहीं था। अगर सहाबा कराम के हालात देखें तो सहाबा कराम की ज़िंदगी सादगी, कनात, ज़ुहद और यकीनो ईमान के साथ बसर होती थी। आज के मुसलमान उस दर्जे से बहुत नीचे हैं। कहाँ सहाबा का ईमान और कहाँ आजकल के मुसलमानों का, कहाँ सहाबा का तर्ज़ ज़िंदगी और कहाँ हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, कहाँ सहाबा की फ़क्रो दरवेशी और कहाँ हमारी हुब्बे दुनिया। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस उम्मत के पहले लोगों की बेहतरी यानी सहाबा की इस्लाह ईमान और ज़ुहद से हुई थी, और इस उम्मत के आखिरी लोगों की बर्बादी हुब्बे दुनिया से होगी और ऐशो इशरत से होगी। क्या ख्याल है? अल्लाह के रसूल की पेशीन गोई 100% नहीं बल्कि 200% दुरुस्त है। आज हम हुब्बे दुनिया में पड़े हुए हैं। सुबह उठते हैं, जूं दुनिया के काम शुरू होते हैं, शाम हो जाती है, रात थक टूट के गिर जाते हैं और हुब्बे दुनिया ख़त्म ही नहीं है।
हुब्बे दुनिया ख़त्म ही नहीं होती। अगले दिन फिर उठते हैं, फिर दुनिया 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 और दुनिया। तो इस उम्मत के आखिरी लोगों की बर्बादी हुब्बे दुनिया और ऐशो इशरत के साथ होगी। एक बंदे को अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी रोज़ी दी है, वो चाहता है मैं इससे ऊपर वाले लोगों को देखूं और उन जितनी ऐश करूं। तो अल्हाकुमुत तकासुर, माल की कसरत ने और इस माल के कसरत में मुकाबले ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जहाँ यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा मिलते हो। इंसान सारी जिंदगी हुब्बे दुनिया ऐशो इशरत में ही गुजार देता है। तो इस उम्मत के आखिरी लोगों की बर्बादी हुब्बे दुनिया और ऐशो इशरत से होगी। तो देख लीजिए, हम जिस दुनिया के पीछे पड़े हैं, ये दुनिया हमें बर्बाद तो करेगी, हमें देगी कुछ नहीं। जिंदगियां गुजारनी हैं, अच्छी गुजारनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना को देखें, सहाबा की ज़िंदगी को देखें, सीरत सहाबा से फ़ायदा उठाएं। मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के और सहाबा की सीरत पढ़ के इंसान की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आता है, बड़ा फ़र्क आता है। तो इनकी ज़िंदगी को पढ़िए। हज़रत आयशा की एक बात आपको बता देती हूँ। हज़रत आयशा के पास 80,000 दिरहम कहीं से आए। हज़रत आयशा के पास उनकी एक खादिमा थी। हज़रत आयशा ने उस खादिमा से कहा कि तुम इन सब को अभी तकसीम कर दो। उनकी खादिमा ने जहाँ जहाँ हज़रत आयशा ने कहा, वो 80,000 दिरहम खड़े पाँव तकसीम कर दिया। शाम का वक़्त आया, सब कुछ तकसीम हो चुका था। हज़रत आयशा का रोज़ा था और उनकी खादिमा का भी रोज़ा था, तो अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं था। हैरत की बातें, पता नहीं हम किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़या हदीस में मौजूद है। दोनों का रोज़ा था, तो उनकी खादिमा कहने लगी कि आप 80,000 दिरहम में से कुछ अफ्तारी के लिए रख लेती। तो हज़रत आयशा पता है क्या जवाब देती हैं, तुमने मुझे उस वक़्त याद कराया। तो ये वो तरबियत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की और अपनी अज़वाज की थी। आज हम कहाँ रहते हैं, ये हमें सोचना होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एक बात यकीनी तौर पर सोच ले कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी अगर अल्लाह ने आपको लंबी उम्र भी दे दी तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 साल हो जाएगी, लेकिन वो आखिरत की ज़िंदगी जो है वो अबदुल अबाद के लिए है। क़यामत का अकेला दिन 50,000 साल का है। और फिर जन्नत के बारे में हदीस में कुरान मजीद में आता है, खालिदीना फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा वो रहेंगे। तो उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए इस ज़िंदगी की बेहतरी चाहना और उस हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, ये कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं है। हमारा ईमान आखिरत पर है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। इस हकीकत को हमेशा अपने सामने रखिए। दूसरी बात, आखिरत को अपना पहला और आखिरी फिक्र बना ले, क्योंकि जो शख्स आखिरत को अपना फिक्र बना लेता है, अल्लाह उसके दुनिया के फिक्रों के लिए काफ़ी हो जाता है। मन जाला हमूमहु हममन वाहिदन हम आखिरत ही कफ़ाहुल्लाहु मिन हम्मे दुनिया हो। जो अपनी तमाम फिक्रों को आखिरत की फ़िक्र बना लेता है, अल्लाह उसके दुनिया की फ़िक्रों से काफ़ी हो जाता है। हाँ बोलो, कौन ऐसा करेगा? कौन ऐसा करेगा? अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा तौफीक दे, मुझे सबसे पहले तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक अता फरमा। हदीस नंबर 1254 अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, तूने अपनी हर मखलूक का तो रिज़्क़ बयान कर दिया, मेरा रिज़्क़ किस में है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस रिज़्क़ पर मेरा नाम नहीं लिया गया। बात समझ आ गई कि इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा
کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو تو نے رزق دے دیا اور ساروں کی تفصیل تو نے بتا دی، تو میرا رزق کہاں ہے؟ کیونکہ تو اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس رزق پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ رزق ابلیس کا رزق ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ جب انسان اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتا ہے۔ اس لیے کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لیجئے اور آخر میں اللہ کا شکر کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اور اگر آپ کو بھول جائے تو پھر جب بھی یاد آئے تو تب کہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اس وقت شیطان نے جو کھایا ہوتا ہے وہ قے کر دیتا ہے۔ تو ہر وہ رزق شیطان کا ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب شیطان کے رزق کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہر وہ رزق جو غیر اللہ کے لیے دیا گیا ہو، کوئی جانور جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، کوئی دیگ جو دربار کے لیے دی گئی ہو، نظر اللہ اور نیاز حسین، یہ جو حسین کی نیاز ہے یہ کس کا رزق ہے؟ یہ شیطان کا رزق ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ تم پر مردار حرام ہے، تم پہ خون حرام ہے، تم پہ سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ شیطان کا رزق ہوتا ہے۔ نظر اللہ، نیاز حسین، یا امام جعفر کے کنڈے، یا دربار کی دیگ، یا دربار کا چڑھاوا، یا اسی طرح کی اور چیزیں جن پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ شیطان کے رزق کون سے ہیں؟ شہرت کے کھانے، شہرت کے لیے جو کھانے کھلائے جائیں، لوگ کہیں کتنا مالدار ہے، کتنا سخی ہے۔ ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ریا شرک ہوتا ہے۔ تو یہ شہرت کے کھانے یہ شیطان کے کھانے ہیں۔ اسی طرح حرام کمائی سے کھانے، اسی طرح جہاں موسیقی بج رہی ہو وہاں کھانا کھانا، جہاں فحاشی ہو رہی ہو وہاں کھانا کھانا، یہ تمام کھانے، یہ تمام رزق کس کے رزق ہیں؟ شیطان کے رزق ہیں۔ ان سے بچ جائیے۔ دوبارہ آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر دی گئی ہو، یہ مالی عبادت میں شرک ہے۔ مثلاً کوئی دیگ جو دربار کو دی گئی ہے، کوئی چڑھاوا جو دربار پہ چڑھایا گیا ہے، جو منت ہے جو کسی پیر کے لیے مانی گئی ہے، کوئی نیاز ہے جو حسین کے نام پہ دی گئی ہے، کوئی امام جعفر کے کنڈے ہیں، کوئی بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے، یہ تمام کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کے کھانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا شہرت کے کھانے، حرام کمائی کے کھانے، ایسے کھانے جہاں موسیقیاں بج رہی ہیں، جہاں مکس گیدرنگز ہو رہی ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، یہ تمام کھانے شیطان کے کھانے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں آپ وہ کھانا کھائیں جو کہ پاکیزہ کھانا ہو، اسے اللہ کا نام لے کر کھائیے اور آخر میں اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے۔ حدیث نمبر 1256 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 2 بھائی تھے، تو ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا، آپ کی حدیثیں سنتا، اور دوسرا آدمی جو تھا محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرے ساتھ کمانے میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا شاید کہ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے شاید میری محنت کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر محنت کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا تو
उस खानदान को तो सबसे ज्यादा रिज़्क मिलना चाहिए जो आपके घर में रह रहा है। वो आदमी आपके घर की चौकीदारी करता है, उसकी बीवी आपके घर में खाना पकाती है, उसके बच्चे आपके बच्चों को खिलाते हैं, उसका सारा खानदान आपकी खिदमत कर रहा होता है। अगर मेहनत पर रिज़्क मिलता हो तो इस खानदान को तो बहुत मालदार होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बाप भी हमारी चौकीदारी कर रहा है, माँ हमारे किचन में काम कर रही है, उसके बच्चे हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, उसकी बेटी हमारी खिदमत कर रही है, इसके बावजूद पूरी नहीं पड़ रही। तो रिज़्क अल्लाह के देने से मिलता है, रिज़्क में बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। तो रिज़्क जो है ये कैसे मिलता है, रिज़्क कैसे अता किया जाता है, इंसान इसको बाज़ औक़ात नहीं जानता। अब रिज़्क इंसान को कैसे मिलता है, रिज़्क की चाबियाँ क्या हैं? सबसे पहले रिज़्क जिस वजह से इंसान को मिलता है, कुरान मजीद हमें बताता है कि इस्तिग़फ़ार से रिज़्क मिलता है। सूरा नूह में हज़रत नूह अपनी कौम से कहते हैं कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ए मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। और जब मूसलाधार बारिश बरसती है तो आपको पता है फसलें उगती हैं, खुशहाली आती है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह माल देता है, अल्लाह बेटे देता है, अल्लाह बागात देता है, अल्लाह नहरें देता है। हज़रत हसन बसरी के पास एक शख्स आया, कहने लगा या हज़रत कोई वजीफ़ा बताइए, कहत पड़ा हुआ है। दूसरा शख्स आया, कहने लगा या हज़रत जो है बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं होता, मुझे कोई वजीफ़ा बताइए। तीसरा शख्स आया, कहने लगा या हज़रत गुर्बत बहुत है, हाथ बड़ा तंग है, कोई वजीफ़ा बताइए ताकि हाथ खुला हो जाए। हसन बसरी ने एक ही वजीफ़ा बताया कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स जो उनके पास बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि या हज़रत तीनों की मुश्किलात फ़र्क थी, आपने तीनों को एक ही नुस्खा बताया। तो हसन बसरी ने ये आयत पढ़ के बता दी, यही जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो बड़ा बख्शनहार है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना, तुम्हें माल के साथ तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें बेटे अता फरमाता है, तुम्हें जन बागात देता है, तुम्हें नहरें देता है। तो इन तमाम चीज़ों का हल एक ही है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार। तो इस्तिग़फ़ार के साथ इंसान को रिज़्क मिलता है। नंबर 2, इस जो है रिज़्क की एक और चाबी तक़वा है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए कोई निकलने का रास्ता बना देते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाते हैं जहाँ से उसे ख़याल तक नहीं होता। तो अल्लाह से हर मामले में डरिए, अपनी जलबत में भी अल्लाह से डरिए, अपनी खलबत में भी अल्लाह से डरिए, तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क अता फरमाएंगे। इसके अलावा हदीस में आता है कि अगर किसी का दिल चाहता है उसके रिज़्क में बरकत हो और उसकी उम्र लंबी हो तो वो सिला रहमी किया करे, सिला रहमी से रिज़्क में बरकत होती है। इसके अलावा सदका करे, अल्लाह एक दाने का अजर 700 दानों से ज़्यादा अता फरमाता है। तो लिहाजा ये रिज़्क की चाबियां हैं। मैंने आपको 4 मोटी मोटी चाबियां बताई। रिज़्क की सबसे पहली चाबी कौन सी है? अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता फरमाते हैं। इसके अलावा अल्लाह से डरें, तक़वे के साथ अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाते हैं जहाँ से इंसान को ख्याल भी नहीं होता। सिला रहमी से अल्लाह रिज़्क में
बाफरी भी अता फरमाते हैं और बरकत भी अता फरमाते हैं। इसी तरह सदक़े से इंसान का रिज़्क़ बढ़ता है। इसी तरह हदीस रसूल का जो तालिब इल्म होता है उसकी वजह से उसके घर वालों को रिज़्क़ दिया जाता है। तो लिहाजा किसी हदीस रसूल के तालिब इल्म की सरपरस्ती कीजिए, रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके भाई को समझाई कि शायद तुझे जो रिज़्क़ दिया जा रहा है वो तेरी मेहनत की वजह से ना दिया जा रहा हो, तुझे अपने भाई की वजह से दिया जा रहा हो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की महफिल में बैठता है और उसे सीखता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इंसान को बाज़ औक़ात कमज़ोरों की वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा होता है, हमें नहीं पता होता हमारे रिज़्क़ में किस किस का हिस्सा है। इसलिए ख़ास तौर पर कमज़ोरों पर मेहरबानी कीजिए। ऐसा ना हो किसी कमज़ोर को हम डांटें, उसके साथ बुरा सलूक करें, उसको नौकरी से धक्के दे के निकाल दें और उसको उस पर जुल्म करें और उसके साथ हमारी रोज़ी जो है वो रुक जाए। तो ये सारी बातें जो हैं इनको याद रखिए, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है और बहुत से बहाने हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला, बहुत से असबाब हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत फरमाते हैं। हदीस नंबर 1258 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना पैदर पे कई रातें भूखी गुजार देते, शाम का खाना ना पाते, उनका अक्सर खाना जौ होता। अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमूना के ये भांजे भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खालू भी लगते थे। आपके घर में रिश्तेदारी की वजह से इनका आना जाना आम तौर पर होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना की रात अक्सर फाके में गुजरती। आपकी खुराक अक्सर जौ और खजूर होती और कीड़े निकालकर अदना खजूर भी खा लेते। ज़रा सोचिए, आज हमें कीड़ों वाली खजूर खानी पड़े तो हम फेंक देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर देखते उसमें कीड़े होते, कीड़े निकाल के बाहर फेंक देते और उसे खा लेते। बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी और बदबूदार चर्बी की दावत दी जाती, उसको भी कबूल फरमा लेते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा वो कंबल और चादर खोल के दिखाई जिसमें आपकी वफ़ात हुई थी। मोटे कपड़े के थे और उन पर कई पैबंद लगे हुए थे। इसके अलावा हज़रत आयशा ही बताती हैं कि बाज़ औक़ात 3 चाँद निकल आते तो अल्लाह के रसूल के घरों में आग ना जलती। एक पहला चाँद एक महीना गुजर जाता, चाँद निकल आता, दूसरा महीना गुजरता, दूसरा चाँद निकल आता, फिर तीसरा चाँद निकल आता, अल्लाह के रसूल के घरों में आग ना जलती। उर्वा बिन ज़ुबैर जो कि इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने हज़रत आयशा से सवाल किया कि अम्मा जान फिर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी? हज़रत आयशा ने कहा खजूर और पानी के साथ, या बाज़ औक़ात आपके जो अंसारी सहाबा होते थे आपको दूध का प्याला तोहफ़तन भेजते थे, आप उसमें से हमें भी पिला देते। लेकिन तोहफ़ा तो बहरहाल तोहफ़ा होता है, पता नहीं कितने दिनों के बाद आता है और पता नहीं कितना आता है। तो आम तौर पे 3 चाँद निकल जाते, घर में चूल्हा ना जलता और हमारा चूल्हा कभी बंद होता ही नहीं। औरतें बड़ी फ़ख्र से कहती हैं कि मेरा तो सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है। ज़रा सोचे तो सही, हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का क्या मुकाबला आपस में। दावा हमारा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हसना है और हम उनके उम्मती हैं, तो क्या हम सिर्फ नाम के उम्मती?
ہم صرف نام کی امتی ہیں یا آپ کے طریقوں کی بھی ہم نے پیروی کرنی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 چاند نکل آتے، گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آل محمد نے کہ آل محمد کے پاس کسی بھی صبح یا کسی بھی شام گندم یا کھجور کا 1 سا موجود نہیں ہوتا تھا۔ 1 سا جو ہوتا ہے 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ کبھی کسی صبح کو نہ کبھی کسی شام کو 1 سا موجود نہیں ہوتا تھا۔ اندازہ کر لیجئے، ہمارے گھر رزق سے بھرے ہوتے اور ہمارے فریج قسم قسم کی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چلتی ہوئی ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے، اور ہم بخیل کے بخیل ہی رہتے۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے فریج میں سے کھانا نکال کے کسی کو دے دیں، وہ کھانا پڑا پڑا بھس جاتا ہے، ہم اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے منہ میں پڑ جائے، اور یہ ہماری بخیلی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بستر دے دیا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ نے نہ کیا۔ اللہ کے رسول نے 2 دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے رسول اس پر آرام کریں، یہ تھوڑا سا نرم ہے اور اس پہ نیند اچھی آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کے ساتھ حکم دیا کہ اس بستر کو جس نے دیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ ہمارے بستر آج کیسے ہوتے ہیں؟ 8 انچ موٹا فارم، اور اس کے اوپر پھر ہمارے چادریں اور بیڈ کور اور پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ۔ اللہ کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ کس نعمت کا اللہ کو حساب دیں گے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ حدیث نمبر 1261، ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے یہ حدیث سنی اور مجھے پسند آئی۔ میں نے اسے کہا مجھے یہ حدیث لکھ دو، تو وہ میرے پاس بہت عمدہ لکھی ہوئی لایا، اور وہ حدیث یہ تھی۔ میرا خیال ہے اس سے حدیث بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں۔ یہ ابو البختری جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث تو جی 400 سال بعد لکھی گئی تھی، تو ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی اور وہ مجھے اچھی لگی۔ میں نے اسے کہا مجھے یہ لکھ دو، تو وہ میرے پاس بہت عمدہ لکھی ہوئی لائے۔ تو لہٰذا صحابہ کے ہاں حدیث لکھی جاتی تھی یا نہیں لکھی جاتی تھی؟ یہ آپ کو ثبوت یہیں سے مل گیا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ عباس اور علی حضرت عمر کے پاس آئے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا سارا مال وقف ہوتا ہے سوائے اس کے جو وہ اپنے اہل کے خرچ کے لیے چھوڑ دے۔ اصل بات میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی 9 ازواج موجود تھے، اور بیٹیوں میں سے آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ زندہ تھی، باقی 3 بیٹیوں کا صدمہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ تو ازواج نے جب وراثت کا مطالبہ کیا تو حضرت عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی
कोई विरासत नहीं होती। हम अगर कुछ छोड़ भी जाएं तो वो सदका होता है। हजरत आयशा की बात सुनकर अज़वाज ने मुतालबा ख़त्म कर दिया, क्योंकि हजरत आयशा ने उन्हें हदीस बता दी थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया माल नहीं छोड़ते, अंबिया इल्म छोड़ते हैं, और उस इल्म के वारिस कौन होते हैं? उलमा। तो हजरत आयशा ने जब ये बात बताई कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, वो जो अगर छोड़ भी जाएं तो वो सदका होता है, तो अज़वाज ने उसके बाद कोई मुतालबा नहीं किया। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या माल छोड़ा था। जिस रात अल्लाह के रसूल फौत हुए हैं, हजरत आयशा ने पड़ोस से तेल हुदार लेकर चराग जलाया था, और उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़रा जो थी वो किसी यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, और उसके एवज़ घर वालों के लिए गल्ला लिया गया था ताकि ये लोग अपना पेट भर सकें। तो इन हालात में आपकी वफ़ात हुई है। तो अज़वाज ने तो अपना मुतालबा छोड़ दिया, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने मुतालबा किया। वो हज़रत अबू बकर के पास आए, क्योंकि अब हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए थे। तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया माल नहीं छोड़ते, वो जो अगर छोड़ भी जाएं तो सदका होता है। हज़रत अब्बास और हज़रत अली का भी इसी सिलसिले में हज़रत उमर से झगड़ा था। हज़रत अबू बकर तो जल्द ही फौत हो गए, उनकी खिलाफत की जो मुद्दत थी 2 साल और 4 माह थी। उसके बाद सारे मामला हज़रत उमर के स्पुर्द हो गए। तो हज़रत अब्बास ने और हज़रत अली ने हज़रत उमर से विरासत का तकाजा किया। हज़रत उमर आपके चचाजाद भाई थे, इस रिश्ते से हज़रत अली का तकाजा था, और हज़रत अब्बास आपके चचा थे, इस रिश्ते से हज़रत अब्बास का तकाजा था। तो उन्होंने हज़रत उमर से इस सिलसिले में तकाजा किया। हज़रत उमर ने हज़रत तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबी का सारा माल सदका होता है, सिवाय इसके जो वो अपने घर वालों के खर्च के लिए छोड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो 2 साल अबू बकर इन मालों के निगरान रहे, और उनका तर्ज अमल वही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल था जो कि आपको खुमस में से मिला था, और इसके अलावा कुछ और माल भी था जो आपको कई और लोगों की तरफ से मिला था। मैं उसकी तफसील में नहीं जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनमें से अपनी बीवियों का साल का खर्चा निकाल लेते थे, और साल का खर्चा निकालने के बाद बाकी का माल जो था उसको अल्लाह के रास्ते में या जिहाद की तैयारी में सरफ कर देते थे। तो हज़रत अबू बकर ने और हज़रत उमर ने भी वही तरीक़ा इख्तियार किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा इख्तियार किया था। हज़रत उमर ने भी कहा कि मैं भी उस माल का निगरान हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छोड़ा है, मैं उसकी निगरानी करूँगा, और उसमें से मैं अज़वाज का ख़र्चा निकालने के लिए बाकी जैसे अल्लाह के रसूल खर्च करते थे वैसे ही खर्च करूँगा। तो 2 साल हज़रत अबू बकर इन मालों के निगरान रहे। उनका तर्ज अमल वही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो फिर मालिक बिन औस की हदीस में से कुछ बयान किया। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया माल नहीं छोड़ते, अंबिया इल्म छोड़ते हैं, और उसके वारिस उलमा होते हैं। और हज़रत अब्बास और हज़रत अली का मुतालबा यही था कि वो माल हमारे सुपुर्द कर दिए जाएं, लेकिन हज़रत उमर ने इसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसी तरीके पे कायम रहूँगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो फिर हज़रत उमर ने हज़रत अब्बास और हज़रत अली को एक पेशकश की थी कि ऐसा करो
کہ ان اموال کے تم نگران بن جاؤ، تم ان کی نگرانی کر لو، اور نگرانی کرنے کے بعد خرچ یہ تم اسی طریقے کے مطابق کرو گے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ اصل بات یہ ہے، تھوڑی سی مجھے وضاحت کر ہی دینی چاہیے کہ ازواج نبی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 ازواج تھیں۔ ان ازواج کے لیے دوبارہ نکاح کرنا حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ ملتا تھا یا مال فے میں سے آپ کو جو حصہ ملتا تھا، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کا حصہ ازواج کو سال بھر کا خرچہ دے دیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہی اموال فے اور یہی اموال غنیمت ان کی نگرانی حضرت عمر کر رہے تھے، اور حضرت عمر نے پھر انہی کی نگرانی کرنے کا اختیار حضرت عباس اور حضرت علی کو دے دیا۔ جب تک ازواج زندہ رہیں ان کو انہی سے سال کا خرچہ ملتا رہا، اور بعد میں پھر ان سب کو بیت المال میں داخل کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 1267 ام سلمہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے زمانے میں تجارت کے لیے بصرہ گئے۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، لیکن ان کے محبت اور تعلق نے اس بات سے نہیں روکا کہ وہ اپنے مقدر کی تلاش میں تجارت کے لیے سفر کریں۔ اس لیے تجارت ان حضرات کے ہاں پسندیدہ مشغلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود حضرت ابو بکر سے تعلق ہونے کے حضرت ابو بکر کو تجارت کے لیے سفر سے نہیں روکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے بڑے خوش ہوتے تھے، مگر وہ تجارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ تجارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ کو پتہ ہے نبوت سے قبل آپ کا پیشہ تجارت ہی تھا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ تجارت میں 10 میں سے 9 حصے رزق ہے، اور قریش کا عام طور پر پیشہ بھی تجارت تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے مانوس کر دیا تھا۔ قریش جو تھے سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر گرمیوں میں اور ایک سفر سردیوں میں۔ ایک دفعہ وہ شام کی طرف تجارت کی طرف سفر کرتے، اور ایک دفعہ یمن کی طرف وہ سفر کرتے۔ تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ حضرت ابو بکر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ کے رسول ان سے مشورے کرتے تھے، تو اس کے باوجود حضرت ابو بکر جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے سفر کرنے سے نہیں روکا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صادق اور امین تاجر کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا جو تاجر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کی تجارت میں برکت دی جاتی ہے، اور آخرت کو اس کا حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، شہداء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی اللہ نہ پلاتا۔ صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے
इस हदीस को रवायत किया है। यानी अल्लाह के यहाँ दुनिया की कीमत अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने ना मानने वाले को, अपने सरकश को पानी का एक घूंट भी नसीब ना फरमाते, बल्कि यहाँ पे अल्लाह ताला काफिर को पानी का एक घूंट भी नसीब ना फरमाते। तो असल बात यह है कि अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई कीमत नहीं है। दुनिया वो कूड़ा है जिसको हम सफाई करते वक्त अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। हम में से हर कोई अपने घर की सफाई करता है। जो कीमती चीज़ें होती हैं या जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि वो फ़ायदेमंद हैं, उसे हम अपने पास रख लेते हैं। अगरचे वो हमारे इस्तेमाल की ना भी हो तो तब भी हम अपने पास संभाल लेते हैं, ये चीज़ मैं फलां को दे दूंगी, ये चीज़ मैं फलां को दे दूंगी। लेकिन जो कूड़ा होता है वो हम अपने घर के बाहर फेंक देते हैं, जो चाहे उठा के ले जाए। तो दुनिया वो कूड़ा होता है जो अल्लाह ताला फेंक देते हैं, जो चाहे ले ले। इसीलिए आप देखती हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह के ना मानने वालों के पास दुनिया ज़्यादा होती है, अल्लाह के मानने वालों के पास उतनी दुनिया नहीं होती जितनी अल्लाह के ना मानने वालों के पास होती है। असल बात है अल्लाह के यहाँ दुनिया की कदर होती तो फिर अल्लाह ताला ये ध्यान रखते कि ये मैंने अपने मानने वालों को देनी है या नहीं देनी। अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी नेमत सबसे बड़ी है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाते हैं, और वो वो नेमत कौन सी है? दीन। इसीलिए हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं। तो जिसको तो अल्लाह ने दीन दे दिया उसको अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ दे दी। और जिसको माल मिल गया, हम समझते हैं हाजा मिन फजले रब्बी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर इतना बड़ा लिख के लगाया होता है कि ये मेरे रब का फजल है। मेरी बहनों, मेरे रब का फजल कौन सा है? मेरे रब का फजल दीन है। माना कि माल भी रब के फजल में से एक हिस्सा है, लेकिन रब का असल फजल कौन सा है? दीन। तो अल्लाह ताला जिसको दीन दे दे उसको अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी खैरें दे दी। अल्लाह हमें दीन अता फरमा दे, अल्लाह हमें दीन की कदर करनी अता फरमा, हमें दीन पर अमल करना अता फरमा और फिर हमारे अमल को कबूल फरमा। आमीन। हदीस नंबर 1299 अबू उमामा बिन सहल से रवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं और उर्वा बिन ज़ुबैर एक दिन हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन देख लेते जिस दिन आप बीमार हुए थे, उस वक़्त मेरे पास 6 दीनार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह ताला ने आपको सारी ज़िंदगी सेहत अता फरमाई। हाँ, आप वफ़ात के वक़्त आप 2 हफ्ते के लिए बीमार हुए हैं और यही आपका मर्ज़ुल मौत था, इसी में ही आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो इस जो थे पहला हफ्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के घर में बारी बारी जाते रहे, जबकि आखिरी हफ्ता आपने तमाम अज़वाज की रज़ामंदी से हज़रत आयशा के घर में गुजारा था, क्योंकि वहाँ आपको सुकून ज़्यादा था। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन देखते जिस रोज़ आप बीमार हुए थे, उस वक़्त मेरे पास 6 दीनार थे। मूसा जो इस हदीस के रावी हैं वो फरमाते हैं कि 7 दीनार थे, यानी या तो 6 दीनार थे या 7 दीनार थे। और एक बात और भी याद रखिए, दीनार सोने का होता था और दीनार का जो वज़न है ये तकरीबन 4 माशे सोना होता था। 3 दीनार 1 तोला सोने के बराबर होते थे। तो दीनार जो था ये सोने का होता था। तो हज़रत मूसा कहते हैं कि 7 दीनार थे, यानी या तो 6 दीनार थे या 7 दीनार थे। हज़रत आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उनको खर्च करने का हुक्म दिया। मैं तीमारदारी में मसरूफ़ होने की वजह से उनको खर्च न कर सकी, तो आपने इन दिनारों के बारे में
इन दिनारों से मुतालिक सवाल किया और पूछा, उन 6 या 7 दिनारों का क्या किया? मैंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं आपकी तीमारदारी की मशगूलियत की वजह से उनको खर्च ना कर सकी। आपने उसी वक़्त वो दीनार मंगवाए और हथेली पर रखे और फरमाया, क्या गुमान है अल्लाह के नबी का, अगर अल्लाह से इस हाल में मिले कि ये उसके पास हों, यानी अगर अल्लाह का नबी अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके पास 6 या 7 दिनार हों, तो वो किस मुंह से अल्लाह को फेस करेगा? अल्लाह अपने नबी के बारे में क्या गुमान करेंगे कि मेरा नबी इस हाल में मेरे पास आया है कि इसके पास 6 या 7 दिनार थे और उनको हुक्म दिया इनको अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का तरीका, कि अगर घर में इस तरह का कोई माल होता आप उसके बारे में बेचैन हो जाते। हज़रत आयशा को पहले भी आपने हुक्म दिया था, लेकिन हज़रत आयशा तीमारदारी में मसरूफियत की वजह से खर्च न कर सकी थी, तो अल्लाह के रसूल को इस बात से शर्म आ रही थी कि अगर मेरी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात हुई कि मेरे पास ये 6 या 7 दिनार हों, तो मैं अल्लाह को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। हुक्म दिया इनको फौरन खर्च कर लो, और हमारे पास इतना माल पड़ा होता है और हमें फिक्र नहीं होती। आज सदका कीजिए, रमज़ान में वैसे भी सदक़े का सवाब 70 गुना ज़्यादा होता है। और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हर रोज़ हज़रत जिब्रील से मिलते, और जब हज़रत जिब्रील से मिलते तो उसका असर क्या होता, आप इतने सखी हो जाते जितनी के तेज़ चलती हुई हवा होती है। और जब हवा तेज़ चलती है तो आप देखें, ना वो अमीर को देखती है, ना वो गरीब को देखती है, ना वो छोटे को देखती है, ना वो बड़े को देखती है, वो हर एक को फ़ायदा पहुंचाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। आज सबसे पहला काम यही करना है कि जो माल अल्लाह ने मुझे दिया है उसमें से मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। हदीस नंबर 1283, अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है कि उस शख्स की मिसाल जो कि हिबा को वापस लेने का मुतालबा करता है कुत्ते की है। कुत्ता कै करता है, फिर अपनी ही कै को चाट लेता है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपना तोहफा वापस मांगे तो तोहफा लेने वाले को चाहिए कि उसको उस चीज़ के बारे में जो वो वापस मांग रहा है बदनाम करने के लिए ऐलान करे और फिर उसको उसका तोहफा वापस दे दे। बाहम तहाइफ का तबादला करना मोहब्बत में इजाफे का बायस होता है। हदीस ही में आता है, तहादू तहाबू, आपस में एक दूसरे को तोहफे दो, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। और ये तोहफे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए। ये तोहफे दुनियादारी के ख़तर न दिए जाएं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वला तमनुन तस्तक्सिर, और तो किसी पर इसलिए एहसान न कर कि तू उसका बदला ज़्यादा मांगे। इस नीयत से कभी भी तोहफा न दे, मैं उसको आज तोहफा दे, मैंने उसको पिछली ईद पे तोहफा दिया था, मैंने उसको एक जोड़ा दिया था, इस दफ़ा उसको मुझे उससे ज़्यादा शानदार देना चाहिए। मैंने फलां की शादी पे उसके बच्चे को डिनर सेट दिया था, तो उसे तो मेरी बेटी को कम से कम वैसा तो देना चाहिए, वरना उससे उम्दा देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इससे अल्लाह ने हमें मना किया है। तोहफे दें अल्लाह की खातिर, मोहब्बत करें अल्लाह की खातिर, और अजर की उम्मीद अल्लाह से रखें। अगर आपने बदले के लिए तोहफा दिया, अगले ने आपको बदले में तोहफा दे दिया, आपका बदला हो गया, अजर कोई नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को अल्लाह की खातिर देना है तो असूल एक ही याद रखना है, कौन सा? नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाइए देने के बाद, आपने अल्लाह को दिया था, अल्लाह को पहुंच गया, अल्लाह ने आपके अमालनामे में लिख दिया और बस। अब तोहफा देने के बाद वापसी का मुतालबा करने वाला आदमी उस कुत्ते जैसा होता है जो कै करने के बाद अपनी
कैब चाट लेता है, तो लिहाजा ये बड़ा कभी अमल है। अगर कोई शख्स आपको तोहफा देने के बाद अपने तोहफे का मुतालबा करता है, वापसी का मुतालबा करता है, तो आप ऐसा कीजिए, उसको बदनाम करने के लिए उसका ऐलान कर दीजिए, इस शख्स ने मुझे तोहफा दिया था, अब मैं मेरे से वापस मांग रहा है, और उसका तोहफा उसको वापस कर दें। यानी उसको बदनाम करने की इजाज़त हमें किसने दी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस अगर कोई शख्स अपना तोहफा वापस मांगे तो तोहफा लेने वाले को चाहिए कि उस चीज़ के बारे में जो वो वापस मांग रहा है बदनाम करने के लिए लोगों को बताए और उसका तोहफा वापस कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम